सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. सो देखते हैं डिटर्मिनेंट क्या होता है. डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी अटैच्ड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स. सो सबसे पहले डिटर्मिनेंट जो है वो हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं और किसी मैट्रिक्स का नहीं कर सकते. Thus, with every square matrix, there is associated a scalar quantity which is called the determinant of A. So, scalar quantity से डरना नहीं है आपको. Scalar quantity means any real number. Okay. So, with every matrix, there is attached a real number which is known as the determinant of a matrix, and it is denoted by determinant A और A mod से भी denote करते हैं इसको. So, very easy to find. So, let us start with a square matrix of order 2 by 2. If this is a square matrix and we have to find its determinant, what we will do, we will multiply a11 with a22. क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमने a11 को a22 से एंड a12 को a21 से. सो देखो मैट्रिक्स के लिए हम हमेशा ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और डिटर्मिनेंट जब फाइंड करते हैं तो ये ब्रैकेट चेंज हो जाती है. सो a डिटर्मिनेंट बिकॉज a वॉज अ मैट्रिक्स. सो a डिटर्मिनेंट दैट इज a mod इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ब्रैकेट्स चेंज हो गई, इज इक्वल टू a11 इंटू a22 माइनस a12 into a21. So always you have to remember, first you will multiply along this side minus the other side. So this is the determinant of a 2 by 2 matrix. So let us take an example. मैंने लिया है let A be a matrix 1 2 3 4. तो देखो A determinant क्या हो जाएगा, 1 into 4 is 4 minus 3 2s are 6. So minus 2. Similarly, if A is any other matrix 3 7 minus 2 minus 3, then this is equal to, now this is the major mistake when which students do, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है, matrix is never equal to this. This is a matrix and this is the determinant. तो अगर आप कभी भी इसको इसके इक्वल लिख दोगे तो that is absolutely wrong. So यहाँ पे या तो आप A determinant लिखोगे या फिर अगर इसके इक्वल लिखना है तो आप लिखोगे 3 7 minus 2 minus 3 is equal to minus 9 minus of minus 14 is equal to 5. I hope you have understood this, that this is not equal to this. This is the matrix and this is its determinant. So निकाला कैसे है, पहले हमेशा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, minus 9 minus, then इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो minus 14 आएगा. So I am getting minus 9 plus 14 which is equal to 5. Hence 5 is its answer. So I hope this is clear to you. So let us move to a matrix of order 3 by 3 now. So next is how to find determinant of a matrix 3 by 3 order matrix. So 3 by 3 order की matrix होती है इस तरह की. तो अब क्योंकि हम determinant निकाल रहे हैं तो brackets जो हैं वो change हो गई हैं. So A determinant is equal to this और A determinant is equal to determinant of the, यहाँ पे फिर matrix का symbol आ गया. So you have to be very careful which brackets to be used. So now A determinant is equal to, अब देखो 3 by 3 order में हम क्या करते हैं, हम किसी भी रो या कॉलम के about expand कर सकते हैं. For the starting we have started with the first row. Now this is the first row, so we have to expand with respect to the first row. So what we will do, this is the first row, first element a11. So I will write a11. So a11 means first column, sorry first row and first column को अगर मैं छोड़ दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, a22 a32 a23 a33. तो मैंने यहाँ लिख लिया a22 a32 a23 a33. फिर आता है माइनस सेकेंड a12. सो a12 मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को छोड़ के जो बच रहा है a21 a31 बच रहा है और इधर a23 a33 बच रहा है, प्लस a13. दैट मीन्स फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे तो ये बचेगा, इसको यहाँ लिख लिया. सो इनके डिटर्मिनेंट्स अब आते हैं हमें फाइंड करने. सो आई एम लेफ्ट विद a11 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, minus a12 into multiply these two minus these two, plus a13 into a21 into a32 minus a31 into a22. तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे you will get your required answer. So for example देखो
ये एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। सो व्हाट दे आर डूइंग, 2 लिखा, 2 के बाद इसको और इसको छोड़ के 2 4 -1 6, 2 4 -1 6, देन माइनस का साइन आता है सेकेंड एलिमेंट 4, सो इसको और इसको छोड़ दिया तो -3 0 -1 6, देन प्लस का साइन आता है, फिर ये एलिमेंट लिखते हैं तो ये बन जाएगा -5, -5 वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो आई एम लेफ्ट विद -3 0 2 4. So now this is equal to 2 times 12, 2 times 12 minus of -4, -4 इंटू आप ये सॉल्व करके देख लेना, आपका आंसर 164 आ जाएगा. Now this they have found by expanding along the first row. So ऐसे ही आप along फर्स्ट कॉलम भी कर सकते हो. तो देखो मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपैंड करके दिखाया है. तो जब फर्स्ट कॉलम के अबाउट करेंगे तो क्या होगा, वही 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के 2 -1 4 6 इज सेम, देन माइनस का साइन आता है, बट अब ये नेक्स्ट एलिमेंट है -3. सो -3 मीन्स सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ के आई एम लेफ्ट विद 4 -5 4 6 4 -5 4 6 प्लस 0. सो 0 को छोड़ेंगे तो 4 -1 2 -5 आना था, बट 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही हो जाता है, इसलिए हमें ये फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है. सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू 2 6 12 प्लस 4 दैट इज 16, माइनस माइनस हो गया +3 4 6 24 माइनस माइनस प्लस 20. सो अगेन आंसर इज़ 164. तो इनका आंसर भी देखो 164 आ रहा था और हमारा आंसर भी 164 आ रहा है. तो आप किसी भी रो या कॉलम के अबाउट एक्सपैंड कर सकते हो मैट्रिक्स को, आपका आंसर सेम आएगा. ऐसे ही आप सेकंड कॉलम ले सकते थे, सेकंड रो ले सकते थे, थर्ड रो ले सकते थे, थर्ड कॉलम ले सकते थे, तो आपका आंसर जो है वो हमेशा सेम आएगा. और जब भी आप लेते हो तो ये साइंस आपने फॉलो करने होते हैं. प्लस माइनस आपने देखा ना, फर्स्ट एलिमेंट के आगे प्लस लिखते हैं, फिर माइनस लिखते हैं, फिर प्लस लिखते हैं. अगर मैं अबाउट फर्स्ट कॉलम कर रही थी तो भी प्लस माइनस प्लस किया है. अब देखो अगर आप ये वाला क्वेश्चन इसमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बाय एक्सपेंडिंग इट विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड रो. सो सेकेंड रो कौन सी है, 5 5 4 वाली, 5 5 4 वाली. तो इसका मतलब अब जो साइंस हमें फॉलो करने हैं वो है माइनस प्लस माइनस. सो सी -5, सो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो 7 8 6 5 बच गया. नेक्स्ट साइन इज +5, इसको छोड़ देंगे तो 10 9 8 5 बचा. देन -4 को छोड़ देंगे तो 10 7 9 6 बचा. सो -5 इंटू 35 -48 +5 इंटू 50 -72 -4 इंटू 60 -63. So this is -5 into -13 +5 into -22 -4 into -3. So इसको सॉल्व करके आंसर इज -33. So they are saying we get the same result if we expand it with respect to the first row. तो यहाँ पे अब इन्होंने फर्स्ट रो के with respect to expand किया, फिर 10 आना था, 10 -7 और 8 लेके ये लिखा है एंड आंसर इज अगेन द सेम. सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट्स. इसको मैं अभी के लिए छोड़ रही हूँ, यानी हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं माइनर्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विल कम बैक टू दिस पार्ट लेटर. सो नाउ व्हाट इज़ माइनर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट्स. तो आपने अभी देखा कि जब आप A11 को अगर कंसीडर करती हूँ मैं, आपको A11 का माइनर फाइंड करना है. सो आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देते हो तो A22 A23 A32 A33 आता है. That is A22 into A33 minus A32 into A23. So this is known as minor of A11. So ऐसे ही आपने किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है. सपोज करो मुझे A22 का माइनर निकालना है, तो वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में लाई करता है उसको छोड़ के जो भी हमारे पास रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स बचते हैं हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब सॉरी नॉट मल्टीप्लाई, हम उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं एंड दैट इज नोन एज द माइनर. सो देखो द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर सब मैट्रिक्स इज कॉल्ड माइनर ऑफ द डिटर्मिनेंट ए. स्क्वायर सब मैट्रिक्स, तो A11 का माइनर निकालना है तो इसकी स्क्वायर सब मैट्रिक्स A बन गई तो ये माइनर बन गया इसका.
A22 का निकालना था अगर, तो इसको छोड़ दिया A11 A31 A13 A33 A11 A31 A13 A33, सो इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट माइनर ऑफ A22। सो सिमिलरली आपको किसी का भी माइनर निकालना है तो आप उस रो में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उस रो और कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो एंड यू गेट द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। अब सपोज करो मुझे यहाँ पे 4 का माइनर निकालना है, सो माइनर ऑफ 4 विल बी -2 इंटू -4 इज +8 माइनस, देखो हम इसका माइनर निकाल रहे हैं तो इसको हमने छोड़ दिया, सो 8 माइनस 4 दैट इज़ 4। सो सिमिलरली यहाँ पे इन्होंने सारे एलिमेंट्स का माइनर निकाला है, मैंने दोबारा लिख दिया डिटर्मिनेंट ताकि आपको इजी हो। देखो 1 का माइनर निकालना है तो इसको छोड़ देंगे, तो आई विल बी गेटिंग -12 -16 दैट इज़ -28। 4 का हमने देखा था अभी 4 आ रहा था। 7 का माइनर निकालना है तो ये वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे, सो -8 -3 दैट इज़ -11। -2 का माइनर निकालना है तो ये वाली कॉलम और रो छोड़ के -16 -28 44 आ गया। आई डोंट नो अगर इन्होंने कैलकुलेशन मिस्टेक्स की हो, मैंने वो चेक नहीं किया, मुझे लगता है यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है बिकॉज इट इज़ -16 एंड -28, तो एक तो माइनस ही आना था, तो हो सकता है यहाँ कैलकुलेशंस मिस्टेक हो, वो आप ध्यान रखना। 3 का माइनर निकालना है तो -4 -7 -11 आ गया। 4 का माइनर निकालना है, 4 1 ज़ा 4 -4 सो 0 आ रहा है। ऐसे ही इसका 4 का माइनर निकालना है तो 1 का माइनर निकालना है तो 16 -21 तो -5 आ रहा है। ये वाले 4 का माइनर निकालेंगे तो 4 1 ज़ा 4 प्लस 14 दैट इज़ 18। इस वाले -4 का निकालना है, सो 3 1 ज़ा 3 प्लस 8 दैट इज़ 11। सो दीज आर नोन एज द माइनर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। सो नेक्स्ट इज कोफैक्टर्स। सो कोफैक्टर्स क्या होते हैं? आर डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ गिवन डिटर्मिनेंट एंड -1 रेज़ टू पावर i प्लस j। मतलब आप ये देखो, ये कोफैक्टर, इफ़ aij डिनोट्स द कोफैक्टर देन कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर i प्लस j इंटू द माइनर। सो देखो जब भी आपके पास एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था ना ऑर्डर। देखो यहाँ पे होता है A11, A11 का मतलब क्या हुआ, 1 + 1 करेंगे तो -1 का स्क्वायर इज प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस। 1 2 का मतलब 1 + 2 इज़ 3। A22 का मतलब 2 + 2 इज़ 4 -1 रेज़ टू पावर 4 इज़ प्लस। सो ये जो मैंने आपको बना के दिखाया था दिस वॉज अकॉर्डिंग टू दिस रूल ओनली। तो आपने ये जो माइनर्स निकाले हैं, आप इन माइनर्स को जब इनके अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कोफैक्टर्स मिल जाएंगे। सो दैट मीन्स अगर मुझे इसी वाले डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर्स निकालने होते तो क्या हो जाते, लेट अस सी। तो देखो अब ये भी ध्यान रखना है आपने। सो देखो 1 1 पे पॉजिटिव है, सो ये इसका माइनर था -28, तो कोफैक्टर भी -28। उसके बाद आता है माइनस, सो यहाँ पे साइन हो जाएगा चेंज। फिर आता है प्लस, तो साइन चेंज नहीं हुआ। फिर आता है माइनस, यहाँ पे -44 आना था तो साइन चेंज होके प्लस हो गया। फिर आता है प्लस, तो साइन चेंज नहीं हुआ। फिर आता है माइनस, 0 का साइन सेम रहता है अदरवाइज साइन चेंज हो जाता। फिर प्लस, तो साइन चेंज नहीं हुआ। माइनस, साइन चेंज हो गया। प्लस, साइन चेंज नहीं हुआ। तो ये जो मैंने साइन चेंज किए हैं ये अकॉर्डिंग टू दिस है। और नहीं तो आप यहाँ से देख सकते हो, जब 1 1 कर रहे थे तो 2 बन गया, -1 रेज़ टू पावर 2 इज़ प्लस, तो साइन चेंज नहीं हुआ। 2 + 1 इज़ 3, तो जब भी ऑड बनेगा तो साइन चेंज होंगे। यहाँ पे इवन बन रहा है, 3 + 1 4, साइन चेंज नहीं हुआ। यहाँ ऑड बन रहा है, साइन चेंज हो गया। ऑड बन रहा है तो साइन चेंज हो गया। इवन बन रहा है तो साइन चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे ऑड बन रहा है, साइन चेंज होना था। 3 + 1 इज़ 4, तो साइन चेंज नहीं हुआ। 3 + 2 इज़ 5, ऑड, तो साइन चेंज हो गया। 3 + 3 इज़ 6, इवन, सो साइन चेंज नहीं हुआ। सो दीज आर नोन एज द कोफैक्टर्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट। सो देखो इसमें अब उन्होंने बोला है फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ A31।
सो A31 मीन्स थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 7. सो 7 में अब आप देखोगे 3 + 1 इज 4, तो -1 रेज़ टू पावर 4, और इसको छोड़ के 2 3 5 6 का डिटर्मिनेंट किया, 2 6 = 12 -15, सो आंसर इज -3. ऐसे ही कोफैक्टर ऑफ A13 मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसको छोड़ के डिटर्मिनेंट ऑफ 4 7 5 8, और A13 है 1 + 3 इज 4. सिमिलरली A21 करेंगे तो 2 + 1 3 है, तो अब जो भी ये डिटर्मिनेंट, यहाँ पे ब्रैकेट्स की गलती है, डिटर्मिनेंट लिखना है आपको, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. तो आई होप दिस यू कैन डू योर सेल्फ. सो यहीं से हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है. आपको ये एक मैट्रिक्स दी थी. नाउ रिमेंबर कैपिटल AIJ विल डिनोट द कोफैक्टर्स. सो हमने एलिमेंट्स की जगह उनके कोफैक्टर्स लिख दिए, और ये जो कोफैक्टर्स लिखे हैं उनका ट्रांसपोज फाइंड कर लिया. तो जो आपके पास आंसर आता है दैट इज नोन एज एडजॉइंट A. सो इफ A was this, then adjoint A will be the transpose of the matrices of the cofactors of given matrix. Let us see further example. So let us see one example. They are saying find the adjoint of the following matrix 0 1 2 1 2 3 3 1 1. So adjoint फाइंड करने का मतलब है हमने इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं. सो 0 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 2 1s are 2, -3 दैट इज -1. देन 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 1 - 9 इज -8, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव होता है तो ये +8 बन गया. देन 2 का कोफैक्टर हो जाएगा 1 - 6 इज -5. देन 1 का कोफैक्टर 1 - 2 इज -1, बट यहाँ पे इसका नेगेटिव आता है तो ये +1 बन गया. सिमिलरली इस 2 का कोफैक्टर करेंगे तो 0 - 6, सो ये आ गया -6. देन 3 का कोफैक्टर करेंगे, सो 0 - 3 इज -3, बट यहाँ से नेगेटिव है तो ये हो गया प्लस. इस 3 का करेंगे, सो 3 - 4 इज -1. नेक्स्ट इस 1 का करेंगे तो 0 - 2 इज -2, लेकिन ये वाले माइनस की वजह से ये प्लस हो गया. नेक्स्ट लास्ट, सो 0 - 1 इज -1, सो इट इज़ -1. तो अब हमने एलिमेंट्स की जगह उनके कोफैक्टर्स लिख देने हैं. सो -1 8 -5, 1 - 6 3, -1 2 -1, और फिर ले लेना है इसका ट्रांसपोज. सो ट्रांसपोज आपको पता है क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स गेट्स इंटरचेंज्ड. तो आप जब इनको इंटरचेंज करोगे रोज एंड कॉलम्स को, सो -1 1 -1 कॉलम से रो बन गई, 8 - 6 2 यहाँ कॉलम से रो बन गया, -5 3 -1 यहाँ कॉलम था, यहाँ रो बन गया. सो दिस इज़ द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. तो ये इतनी दूर लिखते हैं, एक्चुअली आपको ऐसे लिखना होता है. दिस इज़ प्रिंटिंग एरर. ओके, आई होप दिस इज़ अंडरस्टूड टू यू. सो नेक्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस भी अभी मैं छोड़ रही हूँ, ये वाला सारा टॉपिक आपका. This we will discuss in the next lecture. So I am coming to the inverse of a matrix. I am coming to this because now inverse of a matrix is, हमने देखा हमें adjoint भी निकालना आ गया और A determinant भी निकालना आ गया. So A inverse is adjoint A divided by A determinant. So A inverse, how to calculate A inverse? You will find the determinant of the given matrix, then you will find their minors and cofactors, and then you will find its adjoint. So when you will divide the adjoint by the determinant of the matrix, you will get A inverse. Let us see one example. So in this example they have asked you to find the adjoint and inverse of a matrix. So ये आपके पास matrix थी with elements this. So ये इन्होंने co-factors find कर लिए हैं. I hope ये आप कर पाओगे अब. I need not explain it. So वही सेम किया है. देखो 1 का जब फाइंड करेंगे तो 16 - 9 इज़ 7. 3 का करेंगे तो 4 - 3 इज़ 1, बट वो -1 के साथ अटैच्ड है तो -1 आ जाएगा. सो ये आपने ना A11 इज़ इक्वल टू 1 ब्रैकेट में आना था, बिकॉज 1 इसके इक्वल नहीं है. सो ये लिखने का थोड़ा आप ध्यान रखना. सॉरी यहाँ तक आनी है ब्रैकेट. दैट
आई डोंट नो कैसे लिख रहे हैं, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। कोफैक्टर्स ऑफ, हाँ एक्चुअली ये ऐसे लिखना चाह रही हैं, लेट मी टेल यू दैट कोफैक्टर्स ऑफ A12, यहाँ पे पूरा आना है, कोफैक्टर ऑफ A12 इज इक्वल टू जो भी आपका है, देन A11 देन A12 इज कोफैक्टर्स ऑफ दिस। सो ये लिखने का थोड़ा ध्यान रखना आप। तो ये ऐसे करके इन्होंने सारे कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। देन कोफैक्टर्स मैट्रिक्स इज, सो ये इनके पास बन गई कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स। जब इसका एडजॉइंट ट्रांसपोज लेंगे तो ये एडजॉइंट आ गया। सो 7 -3 यहाँ पे देखो कॉलम से रो बन गया, -1 1 0 रो बन गई, -1 0 1 रो बन गई। नाउ यू हैव टू फाइंड ए डिटर्मिनेंट। सो ए डिटर्मिनेंट क्या होता है बेसिकली, आपने किसी भी रो या कॉलम के विद रिस्पेक्ट टू एक्सपैंड करना होता है। सो इन्होंने विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट किया है। सो देखो 1 इंटू इसका कोफैक्टर हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं 7। सो 1 इंटू 7, उसके बाद आएगा -3 इंटू -1, -3 इंटू, ओके सॉरी, यू हैव टू रिमेंबर कि जब हम करते थे तो माइनर से मल्टीप्लाई करते थे, अब क्योंकि ओके लीव इट, आप ऐसे ही करो जैसे इन्होंने किया। सो ये 1 इंटू दिस, -3 इंटू उसका डिटर्मिनेंट, +3 इंटू उसका डिटर्मिनेंट ऑफ द सब मैट्रिक्स। ओके, सो ये बन गया 1 इंटू 7 -3 इंटू 1 +3 इंटू -1। सो दिस इज़ 1। ओके, सो एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे, हम ये जो 7 1 और -1 है ये माइनर्स हैं। तो जब माइनर्स लेते हैं तो साइन जो है वो प्लस माइनस प्लस आते हैं यहाँ पे। अगर आप कोफैक्टर्स, क्योंकि यहाँ पे कोफैक्टर्स थे, अगर आप कोफैक्टर्स ले लोगे तो तीनों साइन जो है वो प्लस आ जाएंगे। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद इट, आपने जैसे फाइंड किया वैसे ही फाइंड करो डिटर्मिनेंट, तो आंसर आ गया 1। सो दैट मीन्स A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A divided by A determinant. So which is, in this case it is equal to adjoint A, otherwise it may not necessarily be always equal. So next example देखो, again you have to find A inverse. तो ये A था, ये डिटर्मिनेंट फाइंड किया, ये कोफैक्टर्स फाइंड किए, कोफैक्टर की मैट्रिक्स आ गई, उसके बाद सो एडजॉइंट ए आ गया। ये हमने देखो यहाँ पे ये ली थी इन्होंने कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स। सो इसका ट्रांसपोज ले लिया, सो इसका ट्रांसपोज लेके दे आर गेटिंग एडजॉइंट ए। सो ए इनवर्स इज एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ओके, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू 1/120 इंटू जो भी आपका आंसर आ रहा था, -34 10 62 10 -10 10 31 5 -53। सो आप ये 1/A डिटर्मिनेंट को ऐसे भी लिख सकते हो, और इन्होंने ऐसे लिखा है यहाँ पे। ओके, सो नाउ दे हैव आस्क्ड एंड वेरीफाई दैट A इंटू A इनवर्स इज I। तो ये A की वैल्यू पुट की और ये A इनवर्स की, देखो A हमें ये गिवन था और ये हमारा A इनवर्स आया था, ये 1/120 को बाहर ले गए हैं। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें आती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहले 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ऐसे ही ये पूरा इन्होंने सॉल्व किया, तो ये देखो ये आंसर आ गया। तो पूरा 120 कॉमन आ रहा है, कॉमन आके सो यू आर गेटिंग आइडेंटिटी। सो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि कभी भी आप किसी मैट्रिक्स को उसकी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे, चाहे लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करो चाहे राइट हैंड साइड पे, आंसर विल ऑलवेज बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज सेम, अगर आप किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से करते हो तो 1 आता है ना, ऐसे ही अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को उसकी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। So next example is show that inverse of a matrix if it exists is unique. So if it exists क्यों लिखा है इन्होंने, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करे। वो कैसे होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट अगर एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा यूनिक होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल इज, इसको आप छोड़ दो,
if A is a this matrix, A is given to be this, you have to prove that A transpose का इन्वर्स इज इक्वल टू A इन्वर्स का ट्रांसपोज. मतलब पहले आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो और ट्रांसपोज लेके जो आंसर आएगा उसका इन्वर्स फाइंड करो, या फिर आप पहले इसका इन्वर्स फाइंड करके जो आंसर आया है उसका ट्रांसपोज लो. सो आंसर विल बी सेम. तो ये ए मैट्रिक्स थी, ये इन्होंने इसका ट्रांसपोज ले लिया. अब सबसे पहले ये ए ट्रांसपोज का इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं. सो एडजॉइंट भी ए ट्रांसपोज का आएगा और डिटर्मिनेंट भी ए ट्रांसपोज का आएगा. तो ये ए ट्रांसपोज था, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स फाइंड की. जब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे कोफैक्टर्स निकालने की तो आप ऐसे डायरेक्टली लिख पाओगे. एंड देन उसके बाद ट्रांसपोज लेके ये इनके पास एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज आ गया. सो दैट ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इज दिस. नाउ वी विल बी फाइंडिंग ए इन्वर्स. तो ये ए मैट्रिक्स थी, उसका डिटर्मिनेंट, उसका एडजॉइंट ए इन्वर्स, और फिर ए इन्वर्स का ट्रांसपोज ले लिया. सो यू विल से सी आंसर इज सेम. ये रिजल्ट आप याद भी रखोगे. ओके. सो नेक्स्ट इज given matrix A, verify that A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to identity. So क्योंकि 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 ऑर्डर की आएगी एज अ रिजल्ट. सो मैंने अभी आपको बताया ही है ये सारा. आपने क्या करना है, ये A मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स फाइंड कर लो. तो अब एक बार आप A को लेफ्ट साइड और A इन्वर्स को राइट हैंड साइड पे लिखो, या फिर A इन्वर्स को लेफ्ट साइड और A को राइट साइड पे लिखो. दोनों टाइम्स आपका जो आंसर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 है. दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट. सो दिस इज द एक्सरसाइज इन द बुक. ओके, यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस. You will be able to do first question from this, then you can do fourth question, then sixth, seventh. सेकेंड थर्ड में प्रॉपर्टीज़ यूज़ होनी है जो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. बाकी नहीं तो आप अपनी बुक में से भी कर सकते हो एक्सरसाइज. एडजॉइंट निकालना देखा हमने. शो दैट ट्रांसपोज ऑफ ए. सो इन्वर्स फाइंड कर सकते हो, ये फाइंड कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो. ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे बाकी आपके 19 तक. देन 20 भी हो जाएगा. आगे प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं वो प्रॉपर्टीज़ हम करेंगे. 20th नहीं होगा अभी आपसे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. बाकी सारे एग्जाम्पल्स आप कर सकते हो. दीज आर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकते हो एंड दीज आर द आंसर्स. सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. सो नेक्स्ट we will do in the next lecture. If you have any doubts, you can ask me in the class.